हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीडीसी यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अंडर द जनरल फार्माकोलॉजी। वी हैव डिवाइडेड जनरल फार्माकोलॉजी into the three segments. We will take one by one. This is the first part of the general pharmacology. Here is the first question. Who is known as the father of pharmacology? This question have number of time asked. Father of pharmacology. You have the options: Oswald Schmidberg, J. Langley, Rudolf Buckham, and Paul Ehrlich. These all four scientists are a very well-known persons in the pharmacology field. Here, your first one, Oswald Schmidberg, is known as the father of pharmacology. J. Langley here is the pharmacologist who have firstly studied the chemical receptor theory. Chemical receptor theory. Rudolf Buckham is the teacher of Oswald Schmidberg, means the guider, mentor, motivator of the Oswald Schmidberg is the Rudolf Buckham, and Paul Ehrlich is known as the father of modern chemotherapy. So here the right option of the father of pharmacology is the Oswald Schmidberg. अगर हम बात करें Oswald Schmidberg के बारे में, Oswald Schmidberg is a German pharmacologist, and he is regarded as the father of pharmacology, and he have given the various fundamental concept in the pharmacology field. Picture of the Oswald Schmidberg. Now the next question number 2. From which of the following routes bioavailability of the drug is likely to be 100%? You have the options: subcutaneous, intravenous, intramuscular and intradermal. एक चीज हमने बात किया है, हमारे ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट होते हैं। इनमें से हमारी जो पेरेंट्रल होती है, these have the fastest bioavailability, and all of on these only the intravenous have the 100% bioavailability and taken as the standard. So here right option is the intravenous have the 100% bioavailability. So if you talk about the bioavailability, what is the bioavailability? First questions. Bioavailability is the fractions of the drug or fraction of the drug that reaches to the systemic circulations. Rate and extent divide कर सकते हैं इसको. Fractions of the drug that reaches to the systemic circulations in unchanged form from the site of administrations. So take the definitions. The proportions of drug or other substance which enter the circulations when introduced into the body and so is able to produce the effect, that is the bioavailability. Simply हम इसको कह सकते हैं rate and extent of drug absorptions. Simple. अब अगर drug absorption की बात आ जाए तो क्या होता है? Drug absorptions is the rate of movement of drug from the site of administrations to the systemic circulations in unchanged form. ये वर्ड लगाना बहुत जरूरी है। तो here अगर हम बात करें IV route have the 100% bioavailability. Routes are the very different. Here oral through the mouth can be, it have the partial bioavailability. Here directly into the blood circulations, IV have the 100% bioavailability. There are the different routes which have the sometimes of the advantage and as well as disadvantage. Now the question number 3, essential drug is, what is the essential drug? Options पहले हम देख लेते हैं. Drug that has been developed especially to treat a rare medical conditions. पहले में हमारी आ गई rare medical conditions. Second, those drugs that satisfy the health care needs of the majority of the populations. ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, majority of the populations. Next, those drugs that satisfy the health care needs of at least 50% of the populations. And fourth options, drug that is to be used within the first hour of the acute attack of the disease. देखिए सारे कंडीशंस हमारी अलग अलग होती हैं. जो हमारी रेयर मेडिकल कंडीशंस में यूज होती हैं उनको हम ऑर्फन ड्रग बोलते हैं. एंड दोज ड्रग विच सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस की अगर नीडेड की जरूरत है, दिस इज द एसेंशियल ड्रग. 50% पॉपुलेशंस की हम बात ही करना. एंड इन केस ऑफ द acute attack of the disease, then there are the emergency drug are used. So here the right option is the B, means
Those drugs that satisfy the healthcare needs of the majority of the populations, they are the essential drug. Essential drug की एक पूरी definitions है, पूरी guidelines है, जिसको WHO ने recommend किया है. Essential have their different meanings. So let's discuss about the essential drugs. Essential drugs are those medicines which needed by the majority of the populations. Here essential, we have make a mnemonics from the essential to remember all the quality of the essential drug. That those drugs should be effective and economical. E for effective and economical. Then it can be only used. Safe, अगर हम बात कर रहे हैं essential की तो safe होना must है. And single drug formulation, single doses form होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर मुझे एक डोज की जरूरत है तो मैं पूरे सिरप को खरीदने चलूँ या पूरे में पैकेज को खरीदने चलो. सिंगल डोजेस फॉर्म में होनी चाहिए. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग. Needed by the majority of the population. This is the options of our questions. They must be available at all times. हमेशा ये उपलब्ध होनी चाहिए. In proper doses form. Doses form बहुत जरूरी हैं. And aim to optimally use the limited financial resources. ऐसे कोई भी aim हमारे होने चाहिए जिनको हम financial resources limited किस हमारे होनी चाहिए. और इनकी लिस्ट हमारी always available होनी चाहिए and should be concerned with the local WHO governing body. तो ये हमारे इसेंशियल के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बहुत जरूरी हैं, इनको आप जरूर याद करें. इसेंशियल नाम से ही सारे इनके ट्रिक्स बने हुए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट, ये वर्ड जरूर ध्यान रखिएगा डियर, एक्सेप्ट लगता है अगर कहीं भी तो एक्सेप्ट. ऑप्शंस हैव विनक्रिस्टिन, एम्फोटेरिसिन बी, हायोसिन एंड निस्टैटिन. लाइपोसोम डिलीवरी सिस्टम्स, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होता क्या है? लाइपोसोम्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज अ न्यूअर टाइप ऑफ द ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स इन विच द ड्रग मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड इन अ लाइपोसोम मेथड्स. मींस इसका लाइपोफिलिक नेचर इसका हम अल्टर करके ड्रग को हम डिलीवरी करते हैं. एंड अगर हम बात करें ये ऑप्शंस में, हमारी Vincristine is given in the form of liposomes. Amphotericin B also given in the form of liposomes. Hyoscine is not given. Means except पूछा गया है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा C. पहले बात कर लूँ कौन कौन सी अदर ड्रग हैं जो लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू इंसर्ट की जाती हैं. एंटी कैंसरस ड्रग दी जाती हैं, एंटी फंगल ड्रग दी जाती हैं, सम एंटी वायरल ड्रग ऑल्सो. तो उनके हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी हैं. हियर इज द लिस्ट वी हैव समराइज्ड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द एंटी कैंसर ड्रग, एंटी कैंसर में हमारी जो भी हमारी डॉक्सोरोबिसिन एंड डाउनोरोबिसिन, ये दो ड्रग हमारी ऐसी हैं जो एंटीबायोटिक, डॉक्सोरोबिसिन एंड डाउनोरोबिसिन एंटीबायोटिक. व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट drugs, then vincristin and camptothecin. Vincristin and camptothecin, these are given in the liposome drug delivery systems. And under the antifungal class, एम्फोटेरिसिन बी एंड निस्टैटिन, ये दो ड्रग हैं जो एंटीफंगल ड्रग के अंतर्गत क्लास के अंतर्गत लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू दी जाती हैं. व्हाइल एंटीवायरल रिवावेरिन एंड ग्वेनसाइक्लोविर. इन केस ऑफ साइटोमेगेलोवायरस, एक क्वेश्चन यहां बनता है, साइटोमेगेलोवायरस CMV ड्रग ऑफ चॉइस इज ग्वेनसाइक्लोविर, एंड इन द केस ऑफ CMV ग्वेनसाइक्लोविर इज गिवन इन द लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. इफ यू टॉक अबाउट द अदर, देयर इज आल्सो अ ड्रग साइक्लोस्पोरिन, दिस इज आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. Pharmacokinetic includes study of all except. Except जरूर ध्यान रखेंगे. तो पहले यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फार्माकोकाइनेटिक. फार्माकोकाइनेटिक मींस द मूवमेंट ऑफ ड्रग इनसाइड द बॉडी, एक लाइन में. दूसरी डेफिनेशन इसको हम कह सकते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. हमारे बॉडी ड्रग पे क्या क्या फर्क डालती है, कैसे कैसे उसके एक्शन चेंजेस कराती है, वो सारी चीजें हमारी क्या है, फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आती हैं. वी हैव द ऑप्शंस हियर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्स इफेक्ट, एक्सक्रीशन. आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया होगा. कहीं भी अगर हम फार्माकोकाइनेटिक की बात करेंगे तो फार्माकोकाइनेटिक में हमें एक ही चीज याद रखना है, ADME. इस वर्ड को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए. ADME means absorption, distribution, metabolism and excretions. These are the 4 parameters of the pharmacokinetic. यहाँ पे absorptions है, distributions है, excretions है. Adverse effect is not the pharmacokinetic property. So here your right option will be the C, that is the adverse effect. Pharmacokinetic क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बात कर लूं, और Pharmacokinetic is the quantitative study of the drug movement in, through, out of the body. इन से लेके आउट तक होने में किसी भी ड्रग के जो भी ड्रग का मूवमेंट होता है वो सारी चीजें हमारे फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आती हैं. इसका मतलब हम सिंपल से कह सकते हैं मींस द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द ड्रग. मींस
द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन द ड्रग, जो बॉडी का इफेक्ट ड्रग पे होता है वही हमारा क्या है, फार्माकोकाइनेटिक है। हमने समराइज किया एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशंस, दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर। सिंपली एक डेफिनेशन हमने बात किया, फार्माकोकाइनेटिक बॉडी डज टू द ड्रग एंड फार्माकोडायनेमिक ड्रग डज टू द बॉडी। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे आपका पहले फार्माकोडायनेमिक में डी आता है, तो यहां पे आपको पहले डी रख देना, इससे आप सारी चीजें निकाल देंगे। ड्रग डज टू द बॉडी, दूसरे में आप रिवर्स कर दीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फार्माकोडायनेमिक इंक्लूड्स ड्रग एलिमिनेशंस, ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एब्जॉर्प्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, फार्माकोकाइनेटिक में हमारे एडीएमई आती हैं, यहाँ पे एलिमिनेशंस में हमारे एक्सक्रीशंस मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो ए बी सी हैं, दीज आर द फार्माकोकाइनेटिक, व्हाइल मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इज व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, मींस किसी ड्रग को हमने इनटेक किया है और वो जिस चीज के लिए ली गई है वो जो अपना एक्शन शो करेगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस प्रोड्यूस करेगी, दैट इज द फार्माकोडायनेमिक। हियर योर राइट ऑप्शन विल बी द डी, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। क्या है हमारा फार्माकोकाइनेटिक, मींस स्टडी ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। इट कैन बी द एक्शंस ऑफ ड्रग एज वेल एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ द ड्रग। वाइल अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये हमारे सारे क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हम ड्रग को इनटेक करते हैं, अभी आईवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओरल की बात कर रहा हूं। सपोज हमने ओरल ड्रग को इनटेक किया, वो हमारे जीआईटी में जाता है, स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन से या स्टमक से वो ड्रग हमारी मूव होके, एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचती है, ब्लड में पहुंचती है, और यहां से ये जो हमारी पहुंचती है तो ऐसे तो जा नहीं सकती है, तो यहां पे एक प्रोसेस लगता है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है, विच थ्रू विच प्रोसेस दिस ट्रांसपोर्ट कैरिड आउट। यू हैव द ऑप्शंस, फिल्ट्रेशंस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, मैक्सिमम ड्रग आर एब्जॉर्ब थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। यू हैव द सी राइट ऑप्शंस, पैसिव डिफ्यूजन। क्या है पैसिव डिफ्यूजन, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। होता क्या है इसमें, लिपिड सॉल्युबल ड्रग, लिपिड सॉल्युबल मीन ड्रग should be unionized. Lipid soluble drug diffuses by dissolving the lipoidal matrix of the membrane, the rate of transport being proportional to the lipid water partitions coefficients of the drug. A more lipid soluble drug attain higher concentrations in membrane and diffuse quickly. ये तो हुई definitions के बाद, मैं आपको एक basic language बात कर दूं। ड्रग जितनी ज्यादा अनायोनाइज्ड होगी उतना ही वो हमारी लाइपोफिलिक होगी, एंड द मोर अमाउंट ऑफ द लाइपोफिलिक ड्रग दैट अटेन हायर कंसंट्रेशन इनटू द मेम्ब्रेन थ्रू विच द ड्रग विच मोर अमाउंट विल एब्जॉर्ब इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशंस। तो ये एक प्रोसेस इसका चलता रहता है, दैट इज द पैसिव डिफ्यूजन। आप इसकी डिटेल स्टडी के लिए आप केडी त्रिपाठी एसेंशियल फार्माकोलॉजी जो हमारी बुक है, केडी त्रिपाठी बाई रिटन बाई, तो उसके पेज नंबर 16 में 8th एडिशन में पूरा डिटेल है, आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसिडिक ड्रग इज मोर आयोनाइज्ड एट, यू हैव द ऑप्शंस, एल्कलाइन, एसिडिक पीएच, न्यूट्रल पीएच एंड नन। एसिडिक ड्रग, एज हम बात करें जितनी भी हमारी ड्रग होती हैं, जितनी भी हमारी ड्रग हैं, दे आर ईदर वीक एसिड और वीक बेस। All the drugs are weak acid or weak base. On the basis of this, their absorptions carried out at the different location inside the GIT. हम यहां पे बात कर रहे हैं एसिडिक ड्रग की। एसिडिक ड्रग का हमारा आयोनाइजेशन ज्यादा कहां पे होगा, एल्कलाइन पीएच पे, और अनआयोनाइज्ड फॉर्म कहां पे ज्यादा होगा, एसिडिक पीएच पे। ध्यान दीजिएगा, आयोनाइज्ड की बात करें तब अपोजिट पीएच हो जाता है, मींस एसिडिक ड्रग विल हाईली आयोनाइज्ड एट basic pH, while acidic drug will highly unionized at the acidic pH. Here you have the questions, that is the acidic drug is more ionized at, right option will be the A, that is the alkaline pH. इसका क्या combinations है ये समझिएगा, acidic drug ionized more at alkaline pH and basic drug उल्टा कर दीजिए, basic drug ionized more will be the acidic pH. अगर हम unionized form की बात करें तो lipid soluble drug are more unionized and they diffuse, while ionized drug are lipid insoluble and they
not diffuse, means they are highly excretable through the urine. एसिडिक ड्रग जितनी हम बात कर लें, सैलिसिलेट, बार्बिचुरेट, इनको हम एक फॉर्म और भी क्या बोल सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड, बार्बिचुरिक एसिड, मींस दे आर एसिडिक, आर प्रीडोमिनेंटली अनआयोनाइज्ड इन द गैस्ट्रिक पीएच. अगर आपसे क्वेश्चन हो जाए कि इसका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, तो ये एसिडिक पीएच से होगा, मींस स्टमक से. while basic drug like morphine, quinine are unionized in the intestinal pH and absorbed from the intestine. Here I have summarized a structure like aspirin. This is unionized mainly into the stomach, so better absorption from the stomach. While if we talk about the basic drug, it unionized into the intestine and absorption will high from the into the intestine. Acidic drug absorbed from stomach, basic drug absorbed from intestine. Okay, next question, question number 9. About acidic drug, true is, options are best absorbed in acidic medium, best absorbed in alkaline medium, not absorbed in acidic medium, binds to alpha glycoprotein. Okay, क्वेश्चन है आपसे एसिडिक ड्रग के बारे में. अभी हमने बात किया एसिडिक ड्रग इज बेस्ट एब्जॉर्ब इनटू द एसिडिक पीएच, मींस स्टमक, बेस्ट एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, पहला ऑप्शन तो हमारा सही है. बेस्ट एब्जॉर्ब इन एल्कलाइन पीएच, बिल्कुल नहीं. नॉट एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम, जी नहीं. बाइंड्स टू अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, जी नहीं. एसिडिक ड्रग बाइंड किससे करती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करती है, व्हाइल बेसिक ड्रग बाइंड करती है अल्फा 1 अमीनो एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से. सो राइट ऑप्शन विल बी द ए. हम समराइज कर सकते हैं, एसिडिक ड्रग highly ionized at acidic pH and best absorbed from the stomach, while acidic drug binds to plasma albumin, not the alpha 1 amino acid glycoprotein, means जितनी भी एसिडिक ड्रग है, A for acid, A for albumin, याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. ये हमने डायग्राम डिस्कस किया, इसको भी यहाँ करने की जरूरत नहीं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बायोअवेलेबिलिटी. ऑप्शंस हैं area of oral upon area of IV, area of IV upon area of oral, area of IV upon area of oral multiplied by the 100, area of oral upon area of IV multiplied by the 100. ध्यान दीजिएगा, यहां आपको बायोअवेलेबिलिटी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. बायोअवेलेबिलिटी फॉर्मूला हम हमेशा स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं, टेस्ट का स्टैंडर्ड से मेजर करके, और बायोअवेलेबिलिटी हमेशा परसेंटेज में होती है. सो ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद 100, मींस ए और बी तो ऑप्शंस पहले भी नहीं होंगे, उनको हटा दिया हमने क्योंकि वहां पे 100 नहीं है, और बायोअवेलेबिलिटी हमेशा 100% में जाएगी हमारी. तो आपके पास सी या डी ऑप्शंस है, और यहां पे हमारी 100% बायोअवेलेबिलिटी किसकी होती है, आईवी की. तो आईवी हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड, एंड स्टैंडर्ड शुड बी ऑलवेज डाउन साइड, मींस हियर D options will be correct, means area under the curve of the oral divided by the area under the curve of the IV multiplied by the 100. Right option will be the D. क्या होता है ये, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं. एक बायोअवेलेबिलिटी इज मेनली डिटरमाइंड बाय द कंसंट्रेशन टाइम कर्व. ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन टाइम कर्व इन ब्लड. अगर ब्लड में मेजर करने की बात हो रही है, देन कंसंट्रेशन टाइम कर्व विल बी देयर. व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट द यूरिन, देन हियर excretions in urine will be measured. Bioavailability always mentioned as the F fraction of the drug that reaches to the systemic circulation in unchanged form. Bioavailability of IV is 100%. So the bioavailability of any test drug will be compared with the IV, and we have the formula area under the curve of the dosage form divided by the area under the curve of the IV multiplied by the 100. Question number 11. Concentration of drug in blood is 40 microgram per ml. Dose of the drug is 200 mg dose, and this is the plasma concentration. Volume of distributions of the drug assuming minute eliminations is. आपको यहाँ पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन दिया हुआ है, डोज दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट करना है. यू हैव द ऑप्शंस 5 लीटर, 0.5 लीटर, 2.5 लीटर एंड 3 लीटर. हमें फॉर्मूला में पता है क्या होता है, VD मींस VD इज इक्वल X बाई C. यहां पे X हमारा क्या है, X इज द डोज
of the drug, while C is the plasma concentration और blood concentration. यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, जो हमारा डोज है, this is given into the 40 microgram per ml, okay, while dose is given into the 200 mg. तो आपको पहले माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, mg में. Then you will put this formula. Definitely your right answer will be there. It will be the 5 liter. How? I will calculate further. Here you have given volume of distribution is equal dose of administered IV upon plasma drug concentration. You have the dose, that is the 200 mg, and the plasma concentration 400 microgram per ml. We have changed here mg into the gram and here microgram into the gram. Now you will get 5 into 10 to the power 3 ml, that will be the 5000 ml, that means 5 liter. You have the right answer. Question number 12, most common phase 2 reactions. यहां पे हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के. The metabolism of the drug carried out into the two phase, phase 1, phase 2. Phase 1 is known as the functionalization reaction and phase 2 is known as the conjugation or synthetic reaction. तो यहाँ पे हम conjugations phase 2 की बात हो रही है. We have the options glucuronide conjugation, acetylation, methylation, sulfate conjugations. Options ये चारों हमारे phase 2 के ही हैं. ये चारों हमारे phase 2 के हैं. इनमें से जो हमारा maximum phase 2 reactions carried out होता है, that is the glucuronide conjugations. Right option will be the A. A में हमारे मैक्सिमम होते हैं. बात होती है कि फेज 1 के कौन कौन से हैं. सो एक चार्ट हम देख लेते हैं, द रिएक्शंस अंडर द फेज 1 एंड फेज 2. फेज 1 हैव द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन. 5 मेजर आर द, टोटल 5 आर द phase 1 reaction. While if we talk about the phase 2 reaction, glucuronide conjugation, glycine conjugations, acetylation, methylation, sulfate conjugations, these are the different phase 2. And all of these in, if कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि phase 1 का सबसे ज्यादा कौन important reactions होता है, then oxidation. If we talk about the phase 2, in phase 2 most important glucuronide conjugation, and in phase 1 most important is the oxidations. Now we have the question number 13. Most common cytochrome associated with metabolism of drug is, options have CYP 3A4 by 5, CYP 2D6, CYP 2C 8 by 9, CYP 2C 1 by 9. पहले इनका मतलब क्या है, पहले ये थोड़ा समझ लीजिए. Here CY means cytochrome, P indicates P450. This numerals 3, पहला numerals की अगर हम बात करें, this denote the family of the enzyme, A denotes the subfamily of the enzyme, while 4 by 5 लास्ट में जो numerals आएगा ये क्या denominate करेगा, this is denominate the individual enzymes number. तो cytochrome P450 family, subfamily and number. तो यहां पे अगर हम बात करें जितने भी हमारे एंजाइम हैं, in this CYP 3A4 by 5, CYP 3A4 आप इतना याद रखिए, by 5 में आ जाएगा. ये मैक्सिमम ड्रग एब्जॉर्प्शन इसी एंजाइम से होता है. तो यहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा क्या, A. अब बात आती है ये हमारे किससे एसोसिएटेड है. मेनली अगर हम बात करें एंजाइम की, इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग देयर आर 2 टाइप्स एंजाइम इन्वॉल्व, माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल. क्या मतलब है माइक्रोसोमल का? माइक्रोसोमल मींस दीज एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में हम ER बोलते हैं, उसी की स्मूथ में सरफेस पे लोकेटेड रहता है. किसमें? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 2 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं. तो यहां पे हमारा ये किसमें प्रेजेंट होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है, मेनली इन लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन एंड लंग्स. एग्जांपल की बात करें, मेनली हमारे साइटोक्रोम P450, देन मोनोअमीनो ऑक्सीडेज, ये हमारे होते हैं. नाउ नॉन माइक्रोसोमल क्या होते हैं? दीज आर द एंजाइम विच प्रेजेंट इनटू द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. कहां पे होते हैं? ये ER पे नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा. ये कहां होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया पे या साइटोप्लाज्म में होंगे ऑफ द हेपेटिक सेल्स, मेनली इन लीवर, एज वेल एज सम
also included into the plasma also. Example, flavoprotein oxidase or esterase. CYP 3A4 carried out the 50% metabolism of the drug. Mainly 50% ड्रग जो हमारी होती है उनके मेटाबॉलिज्म कौन कराता है? यही एंजाइम कराता है. क्वेश्चन नंबर 14, which cytochrome P450 is enzyme inhibitor? You have the options ketoconazole, रिफैम्पिसिन, फेनिटोइन, आइसोनियाजिड. एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ ड्रग हमारी ऐसी होती हैं जो इन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं क्या? एंजाइम एक्टिवेटर और एंजाइम स्टिमुलेटर. दूसरी हमारे होती हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इंड्यूसर एंड एंजाइम इनहिबिटर. आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया एंजाइम इनहिबिटर, यहां पे हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, दैट इज द कीटोकानाजोल. क्यों होगा? एक ट्रिक आप पहले याद करिए, उसी से सारे ऑप्शंस आ जाएंगे. हम दोनों को लेके चलते हैं, एंजाइम इंड्यूसर एज वेल एज एंजाइम इनहिबिटर. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंजाइम इंड्यूसर, एक चीज याद करिए, आपके पास सबके पास फोन ऐसा है जिसमें जीपीआरएस है, तो आपको याद रखना है जीपीआरएस सेल फोन, जीपीआरएस सेल फोन. G for ग्रिशियोफुल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. फेनिटोइन, फिनाइल ब्यूटाजोन. रिफैम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाजेपिन, chloral hydrate and phenobarbital. These are the drug which are enzyme inducer, और हम कह सकते हैं CYP 450 enzyme inducer. नेक्स्ट हमारा आता है इनहिबिटर. आपको ABCD सबको आती होगी, बस उसी से निकाला है. CDEFGHIK, J नहीं ला रहे हैं हम, K ला रहे हैं. आपको याद रखना है CDEFGHIK. C5, 5 C से ऐसी ड्रग हैं लाइक सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. These all are the enzyme inhibitor as well as diltiazem, erythromycin, fluoxetine, fluoxamine, grapefruit juice, HIV प्रोटीएज इनहिबिटर. जितने भी हमारे नेविरापेन, स्क्वेनाविर, जितने नेविर वाली आती हैं वो सब हमारी क्या है? एंजाइम इनहिबिटर होती है. इट्राकेनाजोल, आइसोनियाजिड एंड कीटोकानाजोल, हमारी यही थी इनहिबिटर में, कीटोकानाजोल. तो ये ट्रिक याद रखिएगा, जीपीआरएस सेल फोन फॉर द इंड्यूसर एंड CDEFGHIK ये हमारी है एंजाइम इनहिबिटर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हॉफमैन एलिमिनेशन इज. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी. यू हैव द ऑप्शंस: inactivations of drug by metabolizing enzyme, unexchanged excretions by kidney, excretion in feces, inactivations by molecular rearrangement. ध्यान दीजिएगा, Hofmann eliminations is also known as the non-enzymatic degradations. मतलब इसमें कोई एंजाइम का यूज नहीं है. तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा गड़बड़ हो गया कि inactivations of drug by metabolizing enzyme, ये तो नहीं हो सकता. Now unchanged excretions by kidney, जी नहीं. excretion in feces, जी नहीं. yes, inactivations by molecular rearrangement. molecular rearrangement के बाद ही जब हमारा ऐसा मॉलिक्यूल बन जाए जो excretions जिसका easy हो जाए, that is the Hofmann eliminations. right option will be the D, inactivations by molecular rearrangement. अगर आपसे एग्जांपल पूछ लिया जाए, सारी ड्रग का नहीं होता है, मेनली दो ही ड्रग है, एट्राक्यूरियम एंड सिसएट्राक्यूरियम. दीज आर द ड्रग विच शोज हॉफमैन एलिमिनेशंस. इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा गया है. थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, हॉफमैन एलिमिनेशंस क्या होता है. दिस रिफर्स टू द इनएक्टिवेशंस ऑफ द ड्रग इन बॉडी फ्लूइड बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट विदाउट द यूज ऑफ द एंजाइम इन प्लाज्मा. एग्जांपल एट्राक्यूरियम. Here you can see the diagram. Here is the atracurium. This atracurium can be goes under the esterase enzyme or the molecular rearrangement. In the molecular rearrangement, these structure will form. These are the Hofmann eliminations. These are the 15 important questions. I hope you will like it. Thank you.